everyone, as you all know, CUET is one of the most important exam for all those students who are going for class 12th, appearing in class 12th, and they are willing to go for CUET. Right, तो CUET is like one of the examination also जो कि थोड़ा सा tough भी हो जाता है students के लिए because it has so many things inside it. Now today we have connected with one of the very hardworking and very persistent student, that is Ayush. So Ayush Kumar is with us. ही इज फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम एंड आज के इस वीडियो सेशन में हम उनकी जर्नी जानेंगे सीयूईटी की कि किस तरीके से उन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया और सीयूईटी का रिजल्ट उनका आया, उनको किस तरह का फीलिंग जनरेट हुआ आफ्टर गिविंग ऑल दी efforts, after giving all the examinations, all the subjects examinations. So let's start with this. So Ayush, first of all I would like to ask you कि आपका जो जर्नी था व्हेन यू हैव स्टार्टेड इट, तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, आपको कैसे पता चला सीयूईटी के बारे में, एंड हाउ यू हैव कम अक्रॉस इट एंड हाउ यू स्टार्टेड योर अप्रोच. Okay, so hello everyone. Myself Ayush Kumar. I belong from Kurukshetra, Haryana. So my CUET journey started from grade 12th only. A school that is Wisdom World School Kurukshetra, from which I completed my schooling, it conducted a seminar regarding the CUET examination. So earlier we were not that aware. Like we know that now the criteria has changed from board exam to an entrance, but the awareness was through that seminar only. So after that seminar we got to know the criteria, how the examination is conducted. Like we have to give all the subject individual exams that are also of 200 marks in MCQ based pattern. So it was new for us. And after that our school also conducted a mock test, like the same way the CUET exams are conducted. It was on 2 days, three exams on one day and three on the other. So it was like we started preparing for the CUET from our school days only. After giving my board exams, I deeply started studying for CUET. So my last exam was of business studies. So after 2 to 3 days, uh, I started preparing for the CUET exam. So the difficulty thing ये थी कि English, first of all, we studied for literature. No grammar portion was there in grade 12th, only literature, writing, and reading. So English was a bit where I needed to focus more. Also general test. Thanks to a school, they had a subject reasoning, Oh, but that's nice. still there were other aspects like quantitative aptitude and Hmm. general awareness. Yeah. And as I was targeting DU, it was not necessary to take general test, but as a safer option for other universities like BHU, AU, they asked for general test as a subject. So I also had general test. Moreover, the other domains that I had were accountancy, economics, business studies, and mathematics. So as in the pattern, you have to choose that which subjects you want to give. So this year it was fixed that the maximum subjects that were to be given were six. So I Hmm. opted for these six subjects. For the preparation, I was first connected. I learned about the pattern through YouTube. Like this was the first year it was introduced in OMR pattern, Hmm. Yeah. from that CBT mode to the OMR Yes. pattern. Yes. So Yes. Yes. I got to know about that. Moreover, I also practiced through those टेस्ट पेपर्स. लाइक पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, उसके बाद Hmm. उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट पेपर सॉल्व करे. That's really very nice. Acha, what were your initial thoughts? Like, मतलब when a student come to know about the syllabus, तो उसको लगता है कि syllabus बहुत lengthy है because language भी पढ़ना है, domains भी पढ़ने हैं, फिर general test भी पढ़ना है. Students बहुत sure नहीं होते because they are going for multiple universities. तो स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर गोइंग फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, राइट? तो उनके दिमाग में ये थॉट नहीं होता है कि उन्हें जनरल टेस्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ऑल्दो अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हो डीयू छोड़ करके, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपका जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। यस. तो आपका इनिशियल थॉट कैसा था? वर यू एंग्ज़ियस और यू वर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कर लूँगा? सो हाउ वाज़ योर थॉट?
It was a mixed feeling. Like I always wanted to get into DU, so for me, general test was not that that burden. But still, as an option, like you have to target some other universities for a Hmm. safer side. So Yeah. I prepared for general test. Hmm. Moreover, firstly, I got anxious that इतना सिलेबस है CUET का कैसे कवर होगा. अभी अभी हमने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, अब एक और एग्जाम आ गया है. पहले बोर्ड्स के एग्जाम ही कंसिडर होते थे, अब CUET भी देना पड़ेगा. तो फर्स्ट इम्प्रेशन वाज दैट ओनली. And I prepared for general test and English daily. I gave around 1 hour to each subject, Hmm. and the rest of the time I focused on my domain subjects, which were that were of 200 marks. So out of 800, 600 was for those domains. So I more focused more on those domains. Yeah. And English, I used to read English newspapers like the Hindu, the Times of India, for increasing my vocabulary. Like I solved some of the previous year mock tests of every subject. I saw the pattern, but Hmm. still it was a shocker when we Yeah. saw Was. that there were 4 reading comprehensions Hmm. Yeah. in the exam, more questions from the reading comprehension than from the grammar portion. And also for general test I prepared through various YouTube channels. And for the other domains like accountancy, economics and business studies, I referred my 12th grade NCRTs. That's great. NCRTs are like must. Hmm. The paper is centrally based on NCRT only. Yeah, 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 yeah. For domains, like it is quite easy to understand because NCRT, whether it will be deleted or non-deleted. So if you're Mhm. going for The a complete domain, it NCRT was the ha, part of that. And needed, yeah, also yeah. some portion from grade 11th in economics subject was also there. And In the some of paper, the in the economics paper. Like, 2024 economics paper. yes, ma'am. Okay. The portion from microeconomics was there, like 2 to 3 chapters of grade 11th. And for accountancy, there were 2 topics that were from the deleted portion of grade 12th. Hmm. Like we were not So taught about. like, matlab, you people can say that it is completely clear कि it is completely clear कि like मतलब if you are going for a domains paper so you can completely follow NCRT whether it is deleted or non-deleted. But as he said that economics में there was some portion of 11th also. So मतलब there are chances कि आपको कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर से भी मिल सकता है जिसका टच 12th से हो. But Hmm. English was one paper just like मतलब if you go for 2022 2023, right? So 2022 was completely different, 2023 was completely different, and 2024 is also completely different. But मैं तो ये बोलना चाहूंगी मतलब what I felt like मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक लिए what I get to know कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को फोकस करके चल रहे हो दैट यू हैव टू गेट इनटू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर टफ नहीं होगा. हाँ, द चैलेंजेस की एनटीए की तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट Hmm. ना आए तो राइट. तो आपको क्या लगता है मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है बेटा आपने क्योंकि पूरा थ्रू आउट सीयूईटी जर्नी किया है सो Mhm. यू कैन टेल इट टू आवर स्टूडेंट्स बेटर कि आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है या नहीं एकदम कोर में जाकर के डिटेल में एक एक चीज बच्चा पढ़ेगा तभी उसके लिए बेहतर रहेगा. नहीं मैम, अंडरस्टैंडिंग तो हर टॉपिक की बहुत ज़रूरत है. मतलब वो तो एक मस्ट है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. आपको पता ही नहीं होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस या टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. लाइक कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है जिन्हें आप थोड़े टाइम के लिए कम इम्पोर्टेंस दे सको. लेकिन इंग्लिश में हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की. आपको मिनिमम टाइम में पैसेज से अपने आंसर्स लोकेट करने होते थे, क्या हो सकता है. एक चॉइस हमारे ऑप्शंस भी ऐसे होते थे इंग्लिश के पेपर में कि ऐसा लगता था चारों एक टाइम पे एक बार तो कि सही है. सही है. लेकिन उसमें फिर आपको नेविगेट करना होता था कि ये ऑप्शन बेस्ट सूटेड है. तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डेवलप हो सकता था. Like if you see na matlab when the last final answer key of CUET was out Hmm. so there were like 6 question That 15 mein has wale more paper mein than there were one. 6 question that were like there were two options which were Hmm, right. hmm, So hmm. matlab it was like NTA was a bit confused कि मैं कौन सा आंसर करेक्ट करूँ कौन सा नहीं. And there was one Mhm. question which was drop also. So ठीक है आप अपनी तरफ से मतलब आप और हाँ यहाँ पे there is a kind of suggestion which I want to give to
each and every student of mine कि if you're going for English paper और अगर आपको लग रहा है कि question is doubtful whether you have to answer this one or that one, आप उस question को attempt जरूर करके आओ. हुँ, Because there are many students of mine who says कि मैम मैंने ना confusion की वजह से attempt ही नहीं किया and I lost my marks. ऐसे ही मैंने भी एक क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करा था जिसमें मेरे को डाउट था और प्रोविज़नल आंसर की में उसका आंसर कुछ और था। Yeah, और फाइनल आंसर की से पहले हमें जब चैलेंज करने का ऑप्शन मिला था, तो मैंने वो चैलेंज करा और challenge. फाइनल आंसर की में उसके वो वाला प्रीवियस ऑप्शन भी करेक्ट था और Hmm. दूसरा ऑप्शन जो चैलेंज करा था, वो भी करेक्ट था। तो हाँ, that means you got your marks. येस मैम। That's nice. So मतलब it was like a boon कि ठीक है एटलीस्ट मैंने attempt तो किया whether हाँ, it was confusing. That's nice. ऑल्सो That's देयर इज़ nice. एन ऑप्शन फ्रॉम 50 क्वेश्चन्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40। तो वो Hmm. एलिमिनेशन करना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये 10 क्वेश्चन मेरे को छोड़ने ही छोड़ने हैं, ये 40 मेरे को करने ही हैं। Hmm. और इंग्लिश और बिज़नेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में लाइक वी वर गिवन 45 मिनट्स Hmm. because the theoretical part in business studies were more as compared to the numerical portion, Hmm. and in maths and accountancy and general test we were given 60 minutes because of the numerical portion. That is the standard time ना Hmm. मतलब changed by NTA in 2023 only. अच्छा Hmm. okay. So Ayush, I want to ask one more question. You see, you were not the dropper ना, you were in No, 12th no, and you were I preparing for was the in same. 12th ठीक है. grade only. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ that you were the early bird or you are the last minute warrior. Like I will, I'll consider myself as a last minute warrior Oh my god. So when you started your preparation? after my board exam. Like अच्छा the after your board exam. seriousness related to CUET that अब एग्जाम देना है, अब टाइम जा रहा है, अब तो पढ़ना ही है। अब तो अगर अभी पढ़ना नहीं तो फिर आप भूल जाओ। क्योंकि इस टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, हुँ, तो आपको अगर आप या तो ये होगा कि आप पूरे साल कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो बोर्ड एग्जाम्स के साथ, वरना उन लास्ट के 2 महीनों में अपना बेस्ट एफर्ट दो। तभी आप अपने ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी का पार्ट बन पाओगे, वरना अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, एंड में रिग्रेट ही कर पाओगे, उसके हुँ, अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर तो यही हाँ। है कि मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया बेस्ट नेक्स्ट ईयर, लेकिन वही बात है जो आपके पास वो टाइम था, आपको उसे बेस्ट यूटिलाइज़ करना चाहिए। हाँ, दैट इज़ ट्रू और सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है लाइक यू आर द लास्ट मिनट वॉरियर्स फॉर एवरीबॉडी इट्स नॉट ईज़ी बिकॉज़ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हू आर हुँ, एवरेज और बिलो एवरेज एज़ वेल सो उनके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई फील मतलब पर्सनली आई फील कि स्टूडेंट को ऑन प्रायर बेसिस ही स्टार्ट कर देना चाहिए। डोमेन्स तो वो पढ़ ही रहे होते हैं बट हुँ, लैंग्वेज इज़ वन पोर्शन जो कि आपका बहुत लेंथी हो जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर। अगर आप कोई इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि आप कब प्रिपेयर करो, सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट अर्ली। नाउ वन येस, मोर क्वेश्चन is there any challenge that you specifically faced during your preparation? Like you started your preparation in March, right? येस मैम। तो कोई ऐसा चैलेंज आपको लगा हो कि ये तो मतलब इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट अब नहीं हो पा रहा है, अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लाइक स्ट्रेसिंग सिचुएशन हो गई हो कोई? एज़ सच सिचुएशन ये थी कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि हमारे पास जैसे द कोर्स आई वाज़ टारगेटिंग वाज़ बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अकाउंटेंसी और मैथ्स जिसमें आपके ज़्यादा स्कोर आते, वो कंसिडर होने वाले थे। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना वाज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अपने ज़्यादा एफर्ट्स अकाउंटेंसी में डालूँ या मैथ्स में डालूँ। तो उस टाइम पे वो रहता था कि क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स काफ़ी मतलब बहुत ही कोर सब्जेक्ट्स हैं और दोनों एफर्ट्स और टाइम माँगते हैं। तो Of वो course. डिसाइड करने में कई बार कि आज ये मैथ्स का टॉपिक रह गया, लेकिन ये अकाउंट्स का भी रहता है। तो वो चॉइस करना वाज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। बिज़नेस स्टडीज़ एनसीईआरटी से मैंने मतलब 3-4 टाइम्स रीड कर ली थी, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कर लिए थे, तो वो मेरे लिए ईज़ी पोर्शन था। इकोनॉमिक्स बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, वो भी हो गया था। इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैं रेगुलरली करता रहता था, मॉक टेस्ट भी दिए थे। उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद उनका एनालिसिस, वो एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट था कि कौन से पोर्शन में आप लैग कर रहे हो। कि कहाँ पर अब आपको और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ये आपका वीक पॉइंट है, अगर इसे अभी ठीक नहीं किया, वो एंड में जाकर अगर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया,
वो आपको फिर रिग्रेट होगा कि मैंने अच्छा अगर पहले पढ़ लिया पहले होता, पढ़ लिया होता तो तो वो because same मतलब like in English na there हुँ, was only one condition one sentence of conditional sentences हाँ, like in the whole grammar there was one sentence or one question based हुँ, on that conditional sentence तो कंडीशनल आता है तो कर लिया नहीं आता है तो नहीं कर तो पाए हाँ, same goes for preposition as well phrasal हुँ, verb का question उठा करके दे देता है yeah that's true that's completely true आयुष अच्छा ये बताओ when you were preparing yourself तो येस। what study material helps you the most Like, first of all, I consider the एनसीईआरटी द बेस्ट। एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर्स हैं, उनके लिए तो आप एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लो कि आपको लाइनें ही याद हो जाएँ कि हाँ, ये चैप्टर की मतलब देख ये के नहीं लाइन थी, हाँ ये अच्छा इस लाइन से आया है टॉपिक। तो वो, कि एनसीईआरटी आप इतने अच्छे से कर लो कि आपको वो डाउट ही ना क्रिएट हो। आप अगर पेपर में देने जा रहे हो, तो एक तो एनसीईआरटी, मोरओवर इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज के लिए मैंने पहले तो यूट्यूब से जितना भी मटीरियल था, मैंने उसके थ्रू गो थ्रू करा। पहले एनालाइज़ So करा which कि online platform did you prefer that time? for English, I was connected to Adda 24/7 only, And okay, okay, and for general test, I was connected to some other platform. okay, not an So issue. I prepared for general test from them, and for mathematics, I had a coaching which Okay, I was a part for my 12th board 12th as exams. well. Okay. So I continued from there. Acha, and what about test series? Test series, I was part of some other platform from where I Mm, regularly gave my test series. mm, टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें एनालाइज करना और मेक श्योर मैंने ये किया था कि जब से मेरे को पता चला था कि पैटर्न अब ओएमआर बेस्ड है, तो वो mm, ऑनलाइन वाले में आपको प्रैक्टिस उतनी कम कर कर उसकी जगह आपको अपने साथ एक ओएमआर रखनी ना चाहिए। रखनी पड़ी। वो टाइमर सेट करना चाहिए जितना होना चाहिए और हुँ, ट्राई करना चाहिए कि अगर आपका मान लो 45 मिनट्स का पेपर था, तो आप 30-35 मिनट्स में वो खत्म कर लो, क्योंकि आपको ओएमआर भरने में, उसके पर्टिकुलर्स भरने के लिए अलग टाइम नहीं मिलेगा। हुँ, वो आपको उन्हीं 45 मिनट्स के अंदर कवर करना है। हुँ, आपके ओएमआर्स हों, आपका हुँ, जो भी पर्टिकुलर्स हों, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी हो, तो आपको वो एक टाइम फ्रेम रखना हुँ, पड़ेगा कि इतने मिनट्स में मेरे को अपना एग्ज़ाम खत्म करना ही करना है, हाँ। जो कि इस बार इंग्लिश के एग्ज़ाम में हमें बहुत इश्यू It फेस्ड was हुआ था। lengthy as well and there हाँ, was time management as well. So we cannot expect others to do हुँ, right things for us and we have to like मतलब जैसे भी एडजस्ट अपनी तरफ करके से ही अपना अपनी तरफ बेस्ट से उतने ही कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने 45 पड़ते हैं। मिनट्स में कि यही सबसे क्रूशियल टाइम है मेरे पास, यही फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो उसी अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। सो आयुष डिड यू लाइक मतलब फॉलो एनी स्पेसिफिक स्टडी शेड्यूल और यू वर लाइक रैंडम कि कुछ भी No, कभी भी कर लेते हैं? I followed a study schedule like from Monday to Friday. I before my board exams, I was solely focused on them only. The board exam that I have to give. After the board exam, I divided my time. Like I gave 2 hours to accountancy, 2 hours for mathematics. Like after first session, there was a break of 30 minutes. Then the next session of another subject, ताकि आप वो बोर ना हो कि आपने सुबह से शाम तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन आएगी तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता Yeah, रहेगा। true, 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 true. तो And it's पहले also आपने like मतलब we are not machines ना we are like हाँ, human beings. वही। अगर हम कंसिस्टेंट पढ़ते रहेंगे तो हमारी बॉडी भी एक बार के लिए बोल जाएगी नहीं भाई अब ना हो हाँ, कि पाएगा लाइक अब दैट नहीं हो पाएगा, अब मेरे से आज के लिए बहुत है। तो उस वक़्त आउटपुट ज़्यादा जनरेट करने के लिए आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। True, true, true. So, Ayush, what kept you motivated? Like, matlab, as I told that you have to learn हुँ, language, you have to learn three domains, then general test. It's like a kind of boring thing. मतलब इतना लेंदी हो जाता है कि अब दिन भर पढ़ते रहो and it's like आपको लगेगा अभी भी टाइम नहीं बचा है, अभी ये हुँ, नहीं हुँ। पढ़ा, अभी वो नहीं पढ़ा. तो what kept you motivated कि नहीं अब पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे भी पढ़ना है करना तो पड़ेगा. So what was that? सो द मोटिवेशन वाज़ गेटिंग इंटो माय ड्रीम कॉलेज। कि अब मैंने अगर अभी अपने एफर्ट्स नहीं डाले, तो आगे की जो भी 3 साल मेरे अंडर ग्रेजुएशन के होंगे, मैं उसमें रिग्रेट नहीं करना चाहता कि Mm, यार वो टाइम था मेरे पास, वो 2 महीने थे मेरे पास, अगर मैं उनमें अच्छे से पढ़ लेता, तो शायद मेरे पास एक ऑप्शन रहता कि इससे बेटर मेरे पास एक आउटकम होता। तो वो
और मेरे जो स्टडी टेबल था उसके आगे मैंने एक पिक्चर भी पेस्ट कर रखी थी एसआरसीसी कॉलेज की कि मेरे को आई इसमें नो जाना। दैट वाज़ अ मोटिवेशन। हाँ, कि जब भी मोटिवेशन डाउन रहता था कि वो पिक्चर देखकर कि अगर मेरे को इसमें जाना है, इस कॉलेज में जाना है, व्हिच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर कॉमर्स फील्ड, तो मेरे को अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, इट वाज़ दैट सीन फॉर मी। Yeah, this is the reality. Even there was a time when I was like मतलब studying an article तो उसमें ये था like एक फीमेल थी and she is like she was in forensic department तो जब भी कोई डेथ बेड पे होता था तो वो उनसे क्वेश्चन आर करती थी कि आपकी कौन सी लाइफ की चीज है जो आप सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हो तो पीपल हुँ, वर आंसरिंग कि अपनी जिंदगी की सबसे बुरी चीज जो मैं रिग्रेट करता हूँ वो ये कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था करना और चाहता जब उसने उसके ऊपर रिसर्च किया शी गॉट टू नो दैट कि एक्चुअली में इंसान वो इसलिए नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसे क्या करना है। हुँ, राइट? तो उसने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि अगर आपको ये पता हो दैट व्हाट्स योर गोल एंड आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आप अपने आप रास्ते अपने ढूँढ लेते हो। हुँ, एज़ यू सेड मैंने एसआरसीसी की एक इमेज लगा लिया था अपने टेबल पर। हाँ, ये काफ़ी मोटिवेटिंग है लिटरली। जब आप बार बोलते हैं अर्जुन की आँख, वो अर्जुन हाँ, वो को याद रखना है चिड़िया की आँख या मछली की हाँ, आँख उसको याद रखनी है कि मेरा निशाना ये होना चाहिए। तो फिर आप अपने आप वे आउट निकाल लेते हैं। दिस इज़ लिटरली रियली वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा इंसेन सा लगता होगा कि क्या करेंगे फ़ोटो रख कर के, हुँ, है ना? और क्या करेंगे ऐसा करके। बट दिस इज़ द रियलिटी। वो मैनिफेस्टेशन बोलते हो ना आप लोग, वो हुँ। मैटर करता है। वो एक वो इमोशन लॉ ऑफ बन जाता यूनिवर्स है है। हमारे लिए कि हाँ, इसे हमें अचीव करना ही करना है। करना ही करना है। तो वो आप करते हो। फिर ईदर बाय हाँ, हुक और क्रूक आप उसके लिए जाते ही जाते हो एंड दिस इज़ ट्रू आल्सो। अच्छा आप मुझे ये बताओ बेटा कि लाइक मतलब इफ लाइक यू आर प्रिपेयरिंग राइट? तो फिर येस। सेल्फ डाउट भी आता है और बर्नआउट वाली भी फीलिंग आती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ दैट यू वर इन सेल्फ डाउट एट टाइम और आपको लगा नहीं बस हो गया अब नहीं? नहीं सेल्फ डाउट होता था कई बार, तो उसके लिए मैं अपने बाकी फ्रेंड से बात करता था, वो मेरे को एक्सप्लेन करते थे। मेरे पेरेंट्स एक गाइडिंग थे कि वो बताते थे कि होता है ऐसा, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल अगर आप किसी चीज़ के लिए एक लंबे टाइम के लिए आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीच में अप्स भी आएँगे, डाउन्स भी डाउट्स भी आएँगे। आएँगे, ट्रू। तो उन डाउन्स में आपको अपने आप को उसकी तरफ फिर भी फ़ोकस्ड रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आई वुड थैंक माय फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स जिन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा कि आपको अपना एफर्ट डालना है कि यही आपके पास टाइम है। अगर आपने अचीव कर लिया तो ठीक है, वरना एट द एंड कुछ नहीं होगा। आप रिग्रेट ही करते रहोगे। रिग्रेट ही करोगे, ट्रू। तो वो था मोरोवर मेरे जो फ्रेंड्स थे सीयूईटी के ही एस्पिरेंट्स थे, मैं उनसे बात करता था, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करता था, उनसे वो करता था कि उन्हें क्या लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये रह गया है। मैं ग्रुप स्टडीज़ भी करता था कई बार, ताकि दैट्स ये रियली रहता वेरी था नाइस। कि मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में। हाँ। मेरे साथ और भी लोग हैं, ट्रू, उनके साथ भी वही सेम चीज़ हो रही है जो मेरे साथ हो रही है। तो ट्रू, ट्रू। मेरे को अपना बेस्ट देना है ताकि एट द एंड मेरे पेरेंट्स प्राउड हों, टीचर्स प्राउड हों, मेंटर्स प्राउड हों और हुँ। मैं खुद अपने ऊपर प्राउड हूँ कि मैंने एटलीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट दिया। ट्रू है। आप जब प्रिपरेशन की जर्नी में होते हो ना, आप इतना अलोन हो जाते हो ना हुँ, कि आपको लगता है आपको खुद का दिमाग ही आपको होता नहीं है शैतान का काम करने लगता है वो। तो हाँ जी। वो आपको उसको वो नहीं बनने देना है, डमिन नहीं बनने देना है, आपको अपने थोड़े बहुत इंटरैक्शंस रखने हैं, जो आपको मोटिवेशन दे सकें। कुछ लोग हुँ, ऐसे भी होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं हमारे आस-पास, तो मतलब इट्स बेटर टू अवॉइड देम एंड गो विद दोज़ पीपल जो सेम जर्नी में हैं और फ़ील कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, हुँ, आप उनको मोटिवेट करते रहोगे, तो एक तरह का डाइवर्सिफ़िकेशन थोड़ा-सा देखने के लिए मिलता है, तो अच्छा भी फ़ील होता है। अच्छा क्योंकि उस हुँ, नेगेटिविटी के थ्रू आपको अपने आप ही एक रे ऑफ पॉज़िटिविटी ढूँढनी पॉज़िटिविटी पड़ेगी। मिल जाती है। कि आप ये अच्छा मैं अब ये चीज़ से अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मेरा पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, तो मैं कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लूँ, जो मेरी हॉबी है, मैं उस पे थोड़ा ध्यान दे लूँ। तो इन चीज़ों से आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा जी। और आपको हुँ। ये भी रहेगा कि एटलीस्ट ये नहीं है मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, मैं और चीज़ों हुँ। पर भी उतना ही ध्यान दे एग्ज़ॉस्ट नहीं हो गया। ट्रू रहा हूँ। हाँ है, जी। ट्रू है। अच्छा ठीक है, तो अभी ये तो पूरा जर्नी हो गया, आपने हाँ जर्नी जी। पूरा फुलफ़िल कर लिया, अब आ गया फाइनल डे, द डे हुँ। जिसका इंतज़ार आपने किया था एंड हाँ जी। यू कम टू द पॉइंट जब आपका पेपर है एंड इट्स लाइक मतलब कैसी फीलिंग होती है? बहुत एंग्ज़ियस थे, कॉन्फिडेंट थे या मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी? पेपर से पहले क्योंकि हमारी मेहनत हमने जितनी भी कर ली हो, हमने अपना 100% सारा सिलेबस कर लिया है, वो फिर भी एग्ज़ाम से पहले का एक डर रहता है कि यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, मुश्किल ना हो कहीं।
कहीं टाइम कम ना रह जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हमारा एग्ज़ाम मतलब ऐसा ना हो कि हम डाइवर्ट हो जाएँ और जिसकी वज़ह से हमारा एग्ज़ाम अच्छा ना जाए। तो ये डर रहता था, ये हर एग्ज़ाम से पहले था और इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद तो मेरे को ये था कि बस अब तो ख़त्म है, अब तो अगर खत्म अब है, ये आफ्टर तो एग्ज़ाम नहीं वाली हो फीलिंग थी। पाएगा क्योंकि आस-पास जितने भी बच्चे थे, वो सब उसी के थ्रू जा रहे थे कि पहला पेपर इंग्लिश का था कि पहले ही दिन हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे पास टाइम फर्स्ट खत्म हो इंप्रेशन इज़ द गया हाँ, लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन वही था तो वो कि है भाई, इंग्लिश का पेपर एनटीए ने अच्छा नहीं मतलब गया। कहना तो नहीं चाहिए बट जो मिस मतलब इट वाज़ न्यू फॉर एनटीए एज़ वेल एंड हुँ, स्टूडेंट एज़ वेल कि वो पहली बार ओएमआर पेन पेपर मोड पे देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। हुँ, सो बहुत सारी चीज़ें मिस्ड अप थी इवन देयर वर सम पेरेंट्स एज़ वेल इन द फेलिसिटेशन दे वर सेइंग कि भाई बड़ा मिसमैनेजमेंट था। गर्मी तो बच्चे गर्मी से हाँ, परेशान, फैन वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली फिर उसके बाद बच्चा इंडिविजुअली खुद इतना एंग्ज़ियस है। फिर हुँ, उसके बाद पेपर देख लिया, फिर टाइम नहीं मिला तो बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा इंग्लिश का तो चलो पता है कि आफ्टर इंग्लिश हाँ, एग्ज़ामिनेशन यू वर नॉट सो हैप्पी एंड यू वर नॉट इवन फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि यार पेपर हुँ। अच्छा नहीं गया ऐसा लग रहा था। बट आफ्टर दैट लाइक डोमेन्स का जब आप पेपर देकर के आए तब आपका कैसा फ़ील था? तो फर्स्ट डे मेरा इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम था। हुँ, सेकंड डे 16th मई को मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में दैट वाज़ इन द मॉर्निंग एंड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था इवनिंग में। तो इकोनॉमिक्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था तो उसके लिए मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि चलो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये तो हम कर ही आप लेंगे। कॉन्फिडेंट हाँ। हाँ, वो कॉन्फिडेंस था कि और मुझे ये भी था कि तैयारी मेरी फुल ऑन है, सब करा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, तो डरने की कोई चीज़ नहीं है। इंग्लिश गया, अब बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। हुँ, तो इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में द एग्ज़ाम वेंट गुड उसमें कुछ लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे जो ज़्यादा टाइम फ्रेम से रिलेटेड पूछे हुए थे, ईयर्स पूछे हुए थे। जो कि हमने एनसीईआरटी या किसी और थिंग से हमें नहीं पता था। हुँ, तो वो मैंने जो 10 क्वेश्चन लीव करने थे उनमें उन्हें लीव कर दिया था। बाकी हुँ, जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर था वो बहुत अच्छा गया। इवनिंग में मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था। मैथ्स का एग्ज़ाम आल्सो वेंट गुड लाइक मैथ्स के एग्ज़ाम में अब की बार डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मेरे को हाई लगा था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से कि अब की बार मैथ्स का एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल आया है थोड़ा और नहीं आपको हाँ, पता है मतलब लाइक लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो देयर वर 250 हुँ, 200 आउट ऑफ 200 स्कोरर्स बट दिस ईयर देयर वर ओनली 5 5 ओनली 5 हाँ, वही and कि मैं English in English last year it was 5500 around हुँ, and this year it was 1600 हाँ, वही वो मेजर ड्रॉप इंग्लिश और मैथ्स में हुआ। That's why I said na that there's a possibility कि कट ऑफ लो जा सकती है. कट ऑफ लो That's जा the सकता hope. मतलब if you हाँ, are 750 or near to 750 ना तो there's a possibility that if you are a commerce student and हुँ, if you are willing to go for SRCC ना तो yes there are chances कि आप जा सकते हो. और मैथ्स का एग्ज़ाम होने के बाद थर्ड डे मेरा एग्ज़ाम था बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी का। तो मैंने पहले अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम था और मेरे को इस बार लगा कि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। बोर्ड का एग्ज़ाम भी इस बार अकाउंटेंसी का बहुत ईज़ी था और हमारा सीयूईटी का एग्ज़ाम भी। तो अच्छा. अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम वेंट वेल। अब यही था कि अकाउंटेंसी का बहुत अच्छा गया है। बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे को ये था इतना ईज़ी पेपर है। वो उस ईज़ी के चक्कर में हम ओएमआर में गलत फ़िल कर देते हैं। तो ऐसा मेरे हुँ. साथ हुआ कि वो ज़्यादा हैप्पीनेस के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन्स में ऐसा हो गया था कि ओएमआर गलत फ़िल हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब अपने एंड से कुछ गलत हो रहा होता है ना तो हाँ, लिटरली तब बहुत बुरा बुरा लगता लगता है. है कि उसके बाद फिर घर आकर वही फ़ील रहा कि काश मैं थोड़ा ध्यान से पेपर कर लेता सॉल्व, हुँ. काश उस वक़्त मैं अपना ध्यान सिर्फ़ ओएमआर फिलिंग पे रखता। वो इमोशंस में जाकर कि बहुत It आसान mixed पेपर आया है, emotions. इसमें तो फुल है 200 ऑन 200 उसकी कोई वज़ह से नहीं. ओएमआर फिल करने में मिस्टेक हो गई थी मेरे से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब वो होता है ना लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर के हुँ, जाते हैं न दिस वाज़ योर वन। हाँ, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो नॉट एन इश्यू बट अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा था मतलब लाइक हाँ। इतना हेक्टिक एग्ज़ाम और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हुँ, एंटर हुँ, करना एंड देन कम टू दिस पॉइंट कि कि अब अभी आप एग्ज़ाम खत्म हो गए आकर हैं। के यू आर मतलब ट्राइंग टू मोटिवेट अदर्स सो हाँ, एक अच्छा फीलिंग रहता है वो भी कि ठीक है एटलीस्ट आई एम समवन जिसने कुछ एक्सपीरियंस तो किया। ठीक है, इट हाँ वाज़ जी। गुड। अच्छा, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे आपके जूनियर्स को जो भी 2025 एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, जो प्रिपेयर करने वाले हैं सीयूईटी को? तो मेरी उन्हें एक सिंपल एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सीयूईटी ही मेन है कि मेरे को सीयूईटी ही टारगेट करना है,
तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। बोर्ड्स के सिलेबस के साथ-साथ आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास फिर वो एज रहेगा बाकियों से। कि बाकी मोस्टली बच्चे आप अगर देखें तो पेपर्स के बाद ही बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद प्रिपरेशन करेंगे, जैसे मैंने करी थी। लेकिन मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर मैं साथ-साथ करता, तो मेरे पास हाँ, और तो और ऑप्शंस बेटर रहते, और ऑप्शंस एक होते हैं। एज रहता कि अब अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो रिविज़न अब मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर इक्वली इम्पोर्टेंट है रिविज़न करना। वो एंड रिविज़न मोर ओवर जब तक नहीं प्रैक्टिस। होगी, हाँ, दैट हुँ, प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, जिसका मतलब एकेडमिकली इतने अच्छे नहीं है, तो आप साथ के साथ करते रहें। रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ करते रहें, जितना हो सके अपना बेस्ट एफर्ट दें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि आपको पता चलता रहे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में आपका क्या रैंक आ रही है, और उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करते रहें, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो। रियलाइज़ हो। ट्रू है, बहुत अच्छी एडवाइस है ये। देख रहे हो ना, मतलब इट्स लाइक आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको रेडी हैं बताने के लिए अपना हार्टफेल्ट, बिकॉज़ दे हैव लाइक मतलब गॉन थ्रू इंटू अ वेरी डीप एक्सपीरियंस। आप हुँ, समझ सकते हो जब आप उसके अंदर एंटर करोगे, देन यू विल कम टू नो भाई अच्छा ये भी होता है चीज़ें। क्योंकि हम ना ऐसे बड़े जैसे आपने बोला ना दैट आपने लेट स्टार्ट किया, तो यू वर नॉट सो इनटू इट कि अभी क्या होना है, क्या करना है, हाँ, क्या नहीं हाँ। करना है। तो ट्रू। अभी अच्छा, अब इसके बाद क्या करने का प्लान है आपका? What are you इसके planning after CUET? after CUET, after that, in my undergraduation, I'll opt for civil services. I'll prepare for civil services exam, Mm. and I'll try my best to become an IAS officer. You will be, बोलते हैं ना, where there's a will there's a way, Hmm. and if you will ना, अभी अभी ड्रीम में एसआरसीसी लगाया था, अभी एक ऐसी इमेज लगा देना जहाँ पर आपको आपका ड्रीम आपके सामने दिखाई दे, तो ज़रूर बिल्कुल होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करो अपनी लाइफ में। अभी जाते-जाते हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं, तो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, ma'am. सो व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है रैपिड फायर में? यू डोंट नो? Something unexpected, something अनएक्सपेक्टेड। related to the my journey, or something like that हाँ, related to मतलब CUET. a win-win, a win-win, a हाँ, win-win, मतलब it can be like too many things, not okay. specific to something. सबसे पहली चीज़ तो like if you are motivating your juniors, Hmm. ठीक है? तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे that they should be an early bird or they should go for the last uh, winner? Early bird. Early bird है ना, एक्सपीरियंस बोलता है। सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप। कॉम्बिनेशन, दोनों ही बहुत अपनी-अपनी जगह पर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी करोगे, मोटिवेशन के लिए आपको शिप की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। Required. True, true, true. CUET or preparing class 12th is more important. राइट नाउ अगर आपको आपके फ्यूचर की तरफ देखना है, तो मोर इम्पोर्टेंट इज़ सीयूईटी, लेकिन एक बैलेंस, ताकि एंड में इस साल जैसे अगर मैं डीयू की बात करूँ, तो इस बार टाई ब्रेकिंग के चक्कर में उन्होंने 12th के मार्क्स भी कंसिडर करे हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट थिंग रहेगी, तो आपको उनके बीच में बैलेंस एक क्रिएट करना पड़ेगा। Domain should be more focused on language GT. लैंग्वेज जीटी, क्योंकि डोमेन्स आप पूरे साल पढ़ोगे। लैंग्वेज जीटी के लिए आपके पास, अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ रहे हो, तो उन 2 महीने, 3 महीने जो भी आपके पास रहेंगे, उनमें आप अच्छे से स्टडी करो। अच्छा, your journey satisfying or panic? सैटिस्फाइंग, Satisfying था, अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि ओके। रिज़ल्ट आने के बाद फिर वो खुशी कि अच्छा अच्छे मार्क्स आए हैं, बेशक चाहे जो भी मिसमैनेजमेंट रही हो, आउटकम अच्छा रहा। अच्छा, अभी क्या करने वाले हो? चिल या फिर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? चिल एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अभी तो चिल अच्छा, ही वो चल तो रहा है जब तक हमारा एडमिशन नहीं होता, फिर जाकर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप कि अब मेरे को आगे की सोचनी है। अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट, इंसान को अपने मन की सुननी चाहिए या फिर जो दूसरे कह रहे हैं वो कर लेना चाहिए? डिपेंड करता है, लेकिन मेजॉरिटी अपने मन की सुननी चाहिए, जो आपका मन कहता है कि अब मेरे को ये करना है। लेकिन ये नहीं कि अगर मन कहता है कि अच्छा पढ़ाई छोड़कर मैं अब कोई और काम कर रहा हूँ, नहीं, वो नहीं। अगर आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई से ही आपका अगर फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कंटीन्यूअस स्टडी और टिका चिल पिल? टेक अ चिल पिल, टिका इतना चिल कोई, पिल बिकॉज़ लाइक इट्स हाँ, हेक्टिक।
दैट्स नाइस। अच्छा, हु वाज़ मोर सपोर्टिंग, मम्मी और पापा? मम्मी। मम्मी, मम्मी जगह पे खाना देती हाँ, होंगी हाँ, हाँ। सब कुछ ना, इट्स लाइक मम्मी, मम्मी की मम्मी पानी ममता आ ला दो, जाती है। मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। अच्छा, तो यू आर सिंगल वन और यू हैव अदर सिबलिंग्स एज़ वेल? आई हैव अनदर सिबलिंग। Acha, okay, that's nice. So it was a nice interaction with you. I hope you also enjoyed. I am waiting for you to be here in Adult 24/7 to be another podcast as offline, and I would love to catch you here. And I wish you a very happy journey ahead. And I bless you कि आपका जो dream है UPSC वो आपको मिल जाए. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।